اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے؟ یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی، یہ انجینئر صاحب بتائیں گے۔ کھول کے دیکھ لیں، پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک، بعد میں مشرک، پہلے تو پڑھے گی نہیں۔ لیکن میرا ایک کلپ بندے نے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے۔ آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں۔ جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلے کلین سلیٹ تھے، ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں، لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران و نت پائی ہے، ہاں پورے شہر ہی آگ لائی ہوئی ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہی ہوئے۔ ہاں یہی کرنا تھا نا، آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو وہ تو ہو گیا، یہ تبدیلی ہے۔ اور آج کل وہ جو مرزا پلمبر اور اس کے مرزائی وہ جو سارے بک بک کرتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دیتے، شہیدوں کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دیتے، میں کہ تواڈی نسل وچ نہیں جمیا، تانوں کی لبنا گوڑیا۔ اور ابھی ایک منٹ، ابھی یہ ایک عزیز میرا دکھا رہا تھا کہ وہ جو مرزائی پلمبر ہے اس کو میں مرزائی کہتا ہوں، مرزا ہے تو مرزائی ہے نا، یہ مرزائی ہے، ویسے بھی مرزائی ہے، آپ بھول میں نہ رہیں آپ حضرات۔ اب اس کے کفر سب پر واضح ہو گئے، اس کی بد عقیدگیاں کمینگیاں سب پہ واضح ہو گئی۔ ایسا انٹرنیشنل خبیث اور کمینہ ہے، اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کس فطرے کا انتظار کر رہے ہو یار؟ اس خنزیر کو لگام نہیں ڈال سکتے؟ ابھی مجھے ایک دوست نے ویڈیو سنائی، کہتا ہے درباراں تے تسی لنگر بند کر دیو تو درباراں تے کتے بھوکن۔ میں کیا اللہ دی قسم درباراں تے کتے نہیں بھوک سکتے، تیرے ورگا کتا بھوکدا رہے گا، میری گل یاد رکھ لے، تیرے ورگا کتا بھوکدا رہے گا، اور تیرے نال جڑے کتے نے وہ بھی بھونکدے رہن گے، تساں بھوک بھوک کے مر جانا ہے۔ میرے داتا ہومن یا بابا فرید ہومن اوے تھے تو بمب پھٹائے تے رش کم نہیں ہویا، وہ تیرے بھوکن دے نال رش کم کیویں ہو سکدا ہے؟ تو میں محکمہ اوقاف والے نوں آکھاں گا بھی اس لٹ کتے نوں لگام پاؤ۔ اور پھر وہ انٹرنیشنل بے غیرت لوگ بھی توجہ کرنے جڑے آتے ہیں بولے صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے، اور تیرے گھر آ کے آکھاں تینوں کتا ہی کہنا ہے نا، وہ انسانوں والی بات ہوتی ہے۔ یہ اسکالر ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے منہ سے آگ نکالے۔ ایسے خنزیروں کی کیا اوقات ہے جن کو بزرگ سمجھ نہیں آئے، جنہوں اپنی ماں سمجھ نہیں آئی، جنہوں پیو سمجھ نہیں آیا، جنہوں دین سمجھ نہیں آیا، جنہوں صحابی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت نہیں آئے، وہ گوڑا گلاں کرے گا دین دے بارے اے جے انہاں دی اوقات۔ اور انہاں دی مثال ہے جی میں کھوتے تے کتاباں لدیاں ہون، کھوتے نو کی پتہ میں کیڑے پاسے جانا ہے، بندیاں دے کولوں سکھ۔ اور پھر بس اوقات ہوندا اتاری صاحب جب بولتے ہیں تو عوام بولتی ہے، میں کہے دا مطلب ہے عوام نو پتہ ہے کہ تیری تقریر وچ بغیرتی ہے، اتاری دی تقریر وچ غیرت ہے، اس واسطے عوام بول دی ہے۔ اور تیرے سامنے چند ایک تیرے یتیم اور کمینے بیٹھے ہوندے نے، سانو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے دیوانے کتھوں آئے نے، 2000 سامنے بیٹھا ہوندا ہے، اور اکثر چہرے نویں ہوندے نے، لیکن انہاں دے دل دے اندر نبی دا بھی پیار ہے، صحابہ دا بھی پیار ہے، اہل بیت دا بھی ہے تے اللہ دے ولیاں دا بھی ہے۔ میں گزارش کراں گا محکمہ اوقاف تو یہ کتیاں نو لگام پاؤ جڑا اللہ دے ولیاں دے خلاف اتنا بکواس کردے پے نے۔ جے سستی کردے ہو تے پھر تانوں وہ وقت ویکھنا پوندا ہے، کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندا ہے۔ سستیاں نہ کریا کرو، اسی بالکل نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ وچ لوے، پر اتنی سستی کرو گے تو آخر کس نے ہاتھ پاؤنا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں۔ اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائیں نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے، صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں، کوئی ایک ویڈیو۔ تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے، میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں۔ البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے، اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے۔ تو
जिनको तकलीफ होती है वो भी इसको उठाते हैं, और जिन्होंने तकलीफ देने के लिए यूज करना होता है ना, वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों पार्टियां चूंकि इख्तिलाफी मौज़ूआत को यूज करती हैं, इसलिए लोग बात करते हैं। वरना क्या साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने, मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान की कोई तफसीर रिकॉर्ड करवाई है कुरान और अहादीस की रोशनी में? इलियास कादरी साहब ने, हाजी अब्दुल वहाब साहब ने फजाइल अमाल का लोगों को बता के ये समझना कि वो दीन का काम कर गए। मैंने 344 लेक्चर्स के अंदर ना सिर्फ तफसीर रिकॉर्ड करवाई, बल्कि एक एक आयत जो किसी फिरके की दलील थी ना, उसको भी मैंने साथ डिस्कस किया, और मुखालिफ क्या उसके ऊपर रिबटल करते हैं वो भी डिस्कस किया। अभी दोबारा से जो तफसीर है उसके भी 144 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, सूरह तौबा मुकम्मल हो चुकी है, एक एक चीज कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में बयान की है। तो ये लोग एतराज तो करते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप हमें किसी से कंपेयर करवाना चाहें तो देखें कि जो हम काम कर रहे हैं इस तरह काम किसी और ने किया हुआ है। इवन डॉक्टर इसरार साहब ने कुरान की तफसीर रिकॉर्ड करवाई, बयानुल कुरान। डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा ने कुरान की तफसीर रिकॉर्ड करवाई। वो आप तफसीर पूरी की पूरी गुजार लें, आपको कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है यह तो पता चल जाएगा। कुरान की इनकलाबी दावत क्या है, डॉक्टर सराज साहब को सुन के उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि यार अगर ये कुरान इस तरीके से बयान कर रहा है तो उम्मत क्यों दूसरे रास्ते पे चल रही है? इसका जवाब आपको किसी की तफसीर में नहीं मिलेगा, हमारी तफसीर में मिलेगा कि उम्मत को मुसीबत क्या पड़ी हुई है। अगर कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उम्मत बाबों को क्यों पुकार रही है, ये आपको डॉक्टर सरार साहब नहीं बताएंगे, ये आपको मदूदी साहब नहीं बताएंगे, ये डॉक्टर फरत हाशमी भी नहीं बताएंगी, ये इंजीनियर साहब बताएंगे। खोल के देख ले, पूरी कुरान की तफसीर में उन्होंने बताया कि जब कुरान में वाज़ेह लिखा है कि अल्लाह को पुकारो, तो ये उम्मत में शिर्क क्यों फैल गया? कौन सी आयात हैं जिनको मिस यूज किया है बाबों ने? डिस्कस तक नहीं किया। तो क्या खिदमत हुई? उम्मत तफसीर पढ़ने से पहले भी मुशरिक, बाद में मुशरिक, पहले तो पढ़ेगी नहीं। लेकिन मेरा एक क्लिप बंदे का दिमाग जो वड़ के ना ओदी सारी गंदगी काट के बाहर छोड़ दे। आप पूरी इनकी तफसीरें गुजार दें। जो लोग चेंज हुए भी हैं ना, वो हैं जो बेचारे पहले क्लीन स्लेट थे। मम्मी डैडी लोगों को आप नुमान अली खान सुनाए, फरत हाशमी सुनाए, डॉक्टर इसरार सुनाए, मदूदी साहब पढ़ाए, मम्मी डैडी लोग हैं। लेकिन वो मम्मी डैडी हैं, दुनिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे ग्रां नथ पाई है। हाँ, पूरे शहर च आग लाई हुई है। हाँ, लोग कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट तैयार करें, कोई उम्मत पे काम। हमने उम्मत ही बदल के रख दी है। यानी स्टूडेंट और मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि नई खेप तैयार की जाए, जिधर पूरी की पूरी उम्मत का किबला ही चेंज हो जाएगा। 10 कितने लिखे हुए। हाँ, यही करना था ना। आखिर में यही रिजल्ट है ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे कहें कि कहां लिखा हुआ है ये, तो वो तो हो गया। ये तब्दीली है। बाकी सब लोग बातें करते हैं, हमारा प्रैक्टिकली रिजल्ट सामने है। यही आप वजह देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा या बाकी लोग, इनके बारे में उलमा की उतनी गलीज जुबान, उलमा की किताबें, उलमा की इरशादात नहीं मिलेंगे जितना मेरे बारे में। वो कहते हैं दज्जाल से बड़ा फितना है, इसलिए उन्हें पता चल गया कि हाथी नहीं पाया सानू आके। हाँ, जब तक आप बरेलवियों के साथ गुस्ताखाना जो इबारतें हैं देवबंद की, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप एक बरेलवी को नहीं चेंज कर सकते। बरेलवियत का तो पूरा अकीदा इसके ऊपर खड़ा है कि देवबंदियों के बुजुर्गों ने गुस्ताखियां की हैं, इत्तेहाद उम्मत नहीं हो सकता। मैंने आके जनाब उन गुस्ताखियों को हाईलाइट किया, नाल बरेलवियों की मंजी ठोक दी थी, तो आडे अब्बे भी पढ़ा के गए ने और ना ऐसे दाढ़ थले हो। इस चीज ने बरेलवियों को चेंज किया। डॉक्टर इसरार साहब की पूरी जिंदगी की वीडियोस दिखा दें, कोई एक बरेलवी चेंज करवा के बताएं। जो लोग ये कहते भी ना हम पहले बरेलवी थे, डॉक्टर इसरार को सुन के, ना सरकार, हो ही नहीं सकता। वो बस नाम के बरेलवी थे। कोई कट्टर हो जिसे अपने फिरके के दलाइल पता हो, वो आज भी, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये बाद में बहुत बड़ी करने लगा हूं, आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको
क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है, वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीसें भी मौजूद है, मुंह आट के बह जाएंगे। इसीलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी, देवबंदियों की भी। क्यों करते हैं? बूढ़े ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, आप मुनाजरे का भी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए ने। अनीफ कुरैशी ने क्या किया है उस लाल रुमाल वाले के बड़े भाई के साथ? पानी नहीं उन्हें मंगया, और देखे ना मुनाजरा, तो मुनाजरा देख लें फिर तो अहले हदीस तो सबसे कमजोर फिरका है। लेकिन वैसे आप इनके दावे सुने, कहेंगे नहीं जी हमारी हर बात कुरान से कहते मिट्टी, तो उन्हें पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ये चीज है, जब तक ये चीज नहीं है, वीलॉग्स बनाने से, खिलाफत के ऊपर, इस्लामी निजाम के ऊपर किताबें लिखने से, ठीक है ये इल्मी शहावत है, कूदती है, पूरी करें, बार बार करें, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। एंड रिजल्ट तब है जब तक आप उम्मत के वसवसे सेटल नहीं करते, और जो इसको सेटल करता है ना जी गालियां खाता है। लोग कहते हैं ना तबलीगी जमात ने तौहीद पे बड़ा काम किया है, मुझे तबलीगी जमात के किसी बड़े की एक वीडियो दिखाए कि उसने कभी वीडियो में कहा हो कि कब्र वाले बुजुर्ग से मांगना शिरक है, या अली मदद कहना शिरक है, या रसूलुल्लाह मदद कहना शिरक है। एक वीडियो टाइम क़यामत तक से, इंक्लूडिंग तारिक जमील साहब। नहीं वो कहते हैं अल्लाह से होता है, तो बरेलवी क्या कहते हैं कि वो बाबों से होता है, वो भी कहते हैं अल्लाह से होता है। मसला वहीं खराब होगा जब आप कहेंगे कि अल्लाह से होता है और आप अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए नहीं पुकार सकते, यह शिरक है। और कोई बाबा अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। सरकार ये बात करते हुए उस मौलवी का अपना पेशाब निकल जाए डर से, तो क्या इस्लाम की खिदमत है? इसका मतलब है कि हमारे उलमा वो तौहीद बयान कर रहे हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद बयान की है तो 80 बंदे कबूल करने वाले थे, रायविंड में 20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है। सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि यह तौहीद जो कड़वी तौहीद है। बाकी अगर आप ये हमारे इस दावत के प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा वॉल्यूम देख रहे हैं, तो मैं तो इसे करामत से ही ताबीर करता हूं। मुझे तो खुद मेरी आंखों को यकीन नहीं आता कि आज के इस दौर में इतनी सख्त बातें सुन के एक पढ़ा लिखा तबका उस बात को कबूल कर ले, जबकि लोग एक दूसरे के खिलाफ बात सुनने के रवादार नहीं है। वो जी चुप करके जी अपना नमाज रोजा करो जी, उसके अंदर आके वो बकौल जुनेद सलीम साहब के कि एक बंदे ने, लोग तो सिर्फ पत्थर आके फेंकते थे पानी में, इंजीनियर साहब ने पहाड़ ले आके सुट देता है, वो पानी खुश्क हो गया बुजुर्गों का। पहले तो लोग वट्टा सुटते सन ना तो इरताश होंदी सी, थोड़ी शोर होया, फिर असी वट्टा नहीं सुटिया, लिया के पहाड़ वड्डा सुट देता है, वो फिरके का जो पानी थी वो खुश्क हो गया। तुम पता जैसे पहाड़ आके डिगे पानी खुश्क हो जाता है, नया जजीरा नमोदार हो जाता है। तो ये तो इस उम्मत की किस्मत में लिखा हुआ था कि नशत सानिया होनी है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर नबी इस्लाम की पेश गोई ना होती कि कुर्बे क़यामत से पहले दीन दोबारा गालिब होगा, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी इस तरह की दावत की कोई आउटपुट निकलनी है, क्योंकि इस तरह की बातें कोई नहीं सुनता जी। सीधी सी बात है, हर बंदे को अपने फिरके से, अपने बाबे से मोहब्बत होती है, और एक बंदा आके सारे बाबे ज़बह करता जाए, कुत्ते की मौत मारता जाए एक एक को पकड़ के, और लोग उसकी बात नेगेटिवली सुने भी और फिर कहें ये बंदा ठीक बात कर रहा है, साढ़े बाबे गलत सन। ये आप अगर एक लम्हे के लिए कभी बैठ के कमरे में सोचें तो ये इम्पॉसिबल काम था। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। अल्लाह ने उम्मत की तकदीर में लिखा हुआ था कि कुर्बे क़यामत से पहले दोबारा दीन का गलबा होना है। उसके लिए जरूरी है कि उस पैटर्न पे वापस जाए। वीलॉग से कुछ नहीं होना, किताबें लिखने से कुछ नहीं होना, जमातें बनाने से कुछ नहीं होगा। हर बंदे ने नबी इस्लाम का मुजाहिद बनना है और उम्मत को सही बात बतानी है। ये बात कहना आसान है कि जी ये क्या बात होगी, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, इसी के ऊपर तो है। जाओ डॉक्टर इसरार की जमात का, मदूदी की जमात का कोई बंदा मुझे बरेलियों की मस्जिद में एक जुमला बोल के बताए, तो फिर तुम क्या तब्दीली लेके आओगे? उठा के दूसरे दिन परे मारेंगे। जाओ ना, इकट्ठे हो ना सारे। आपको पता है ना कि मज़ारात बनाना गलत है, करो ना इकामत दीन, जाओ दाता दरबार भन के विखाओ। तो ऐसी दी तैसी हूं जेड़ा आके इकामत दीन ते गल करेगा, मैं उन्होंने कहांगा हाँ नबी इस्लाम ने बुत तोड़े थे, इकामत दीन फतेह मक्का के दिन किया, तुम ये सारे बुत गिराओ। उठो, मंसूरा से उठाओ अपनी टीम, जाओ दादा दरबार गिरा के बताओ, मैं तकना थोड़े नाल कि इकामत दीन तुसी करते हो। सब बातें हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होना। इसके लिए ज़हनी तत्हीर की जरूरत है। आपने अवाम को तैयार करना है, जो नबी इस्लाम के पैटर्न के ऊपर काम हुआ था वो होना है। ये लोग कहते हैं मक्की दौर, मैं कहता हूं मक्की दौर बहुत अच्छा था इस दौर से।
कम अज कम काफिर और मुसलमान तो क्लियर थे। इधर जो सबसे बड़ा गुमराह है ना, वो सबसे बड़ा आशिक रसूल है, और जो सही कुरान हदीस की बात करता है वो गुस्ताख रसूल है। क्या हुजूर के जमाने में यह था कि लोग अबू जाल को आशिक रसूल मानते थे और अबू बकर सिद्दीक को गुस्ताख रसूल मानते थे? आज ऐसा ही है कि जो कुरान हदीस की बात करता है वो गुस्ताख रसूल है, और जो शिर्क की बात करता है वो आशिक रसूल है कि नहीं? तो मुझे बताएं कि ये दौर इस एतबार से, वैसे कई एतबार से ये दौर बहुत बेहतर है, पिछले 1000 साल से बेहतर है, लेकिन इस एतबार से कितना बड़ा अलमी है कि कब्रों के पुजारी, कब्रों से मांगने वाले, मुर्दों को पुकारने वाले, कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, बुखारी मुस्लिम के अपोजिट नमाज पढ़ने वाले, ठीक है, शिरकी अकायद रखने वाले, बिदत पे चलने वाले लोग दीन के इमाम है, और जो बीच में आके दीन की बात करता कहता है वड़ दो गुस्ताखे रसूल नजदी, यदि शक्ल ही मनहूस है। इस माहौल के अंदर इकामत दीन, इस माहौल के अंदर इकामत दीन यह है कि जो आशिकाने रसूल हैं इनको बताएं कि आपको इश्क के नाम के ऊपर धोखा दिया गया है, और उनको आप मुसलमान करें, और जब वो मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह खुद ब खुद ये सारे के सारे मामला सेटल होते जाएंगे, और प्रैक्टिकली हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कई हमारे स्टूडेंट रिवर्ट हुए हैं। अगर वो किसी मस्जिद के मुतवल्ली थे, उन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर वो सिस्टम राइज कर दिया मेरे कहे बगैर ही। उन्होंने कहा भी कल से इमाम साहब नमाज रफुल यदैन से पढ़ाएंगे, सख्तों के साथ पढ़ाएंगे, अदरवाइज छुट्टी करें। तो मैंने तो नहीं किसी को कहा कि ऐसा करें। हाँ, हमें बाद में आगे वो बताते हैं कि जी हमने तो अपनी मस्जिद के अंदर ये सारा काम कर दिया। ये है तब्दीली, ये कोई करवा के बताए। इस तरह मम्मी डैडी किस्म की जो वीलॉग्स, मम्मी डैडी किस्म की तंजीमें, मम्मी डैडी किस्म की गुफ्तगू करना, ये गुफ्तगू करने से अगर इकामत दीन होती है ना, तो गुफ्तगू करने वाले आए, दुनिया से चले गए, दुनिया उधर की उधर ही खड़ी है। आज दुनिया ने कौन सा इतना बड़ा फितना देख लिया है कि दुनिया की कोई मस्जिद नहीं जहां आग ना लगी हुई हो। मुझे बताएं, जाए किसी भी मस्जिद में चले जाए दुनिया की, और जाके मेरा नाम ले दें, 4-5 गालियां देने वाले आपको मिल जाएंगे, 2-4 स्टूडेंट मिल जाएंगे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या हो गया? दुनिया में तब्दीली आई है, तो ये आप इंशाल्लाह तब्दीली देखेंगे।